Before going to play my video, I pay my tribute to all the Corona warriors. Bharat Mata ki Jai, Bande Mataram. I would like to welcome you all to my YouTube channel Anjana's Education. Today we are discussing another new unit, Unit 3. In the previous unit, we discussed about how the writer was selected into hero. Before that, we also discussed how and what was his experience in the entrance examinations, and we also came to know the costume of Harrow School and how it was quite different from other school. Later on we also discussed the writer's knowledge regarding English grammar and how did that how English grammar helped him. That we came to know. In this chapter or in this unit we are going to discuss how did the writer enjoy in the Harrow School, and also how he was victimized there at Harrow by one of his senior. Unknowingly he committed a mistake, and we are going to discuss what kind of enjoyment there, what did he do there apart from study. So, aren't students at school fun loving? Do young students play pranks with their school fellows? Read the following unit of the text and note how the writer described a funny incident he was involved with at school. So, one of the funny incident happened in the school or at his school, and how he was involved I am going to discuss. से किभଳି भाबे इन्वॉल्व थिले से विषय रे आमे जानिबा. पूर्व यूनिट विषय रे आमे जानिथिले जे राइटर केमती हेरो स्कूल रे से एडमिशन हेतिले. मिस्टर जो तांकर हेडमास्टर थिले आमे कहबा वेल डन जोगु, किंतु नेक्स्ट ऑल्सो आमे जो जानिबा को पाइले जे राइटरंकर इंग्लिश नॉलेज विषय रे जे तांको हेल्प करथिले तांको ना थिला समरवेल, who was specialized in English grammar and English poetry. He taught the writer and other students about English topics. And in this chapter or in this unit, आमे जाउछु डिस्कशन करिया पई जे how did the writer enjoy at Harrow. Harrow school से किभଳି भाबे एन्जॉय करथले. I first went to Harrow in the summer term. Summer term रे से प्रथम थर पई से गले Harrow school को. The school possessed the biggest swimming bath. There was a swimming bath বা swimming pool. गोटे swimming pool भलिया गोटे जिनस थिला से स्कूल रे. I had ever seen it was too big. बहुत बड़ो थिला. It was more like the bend of a river than a bath. It was more like the bend. बहुत बक्राकार थिला and river than a bath. गाधेवा अपेक्षा एठी गाधा गाधी करथले लोक माने स्टूडेंट माने समस्त एठी स्विमिंग पूल रे माने ये करथले. And it had two bridges across it. आ मध्य दे दुईटी ब्रिज जाइथिला. Thither we used to repair for houses for hours at a time and bask between our dips, eating enormous buns on the hot asphalt margin. Actually, it is mentioned how the writer enjoyed there at Harrow, and he told about the swimming pool which was too big. गोटे swimming pool विषय कहते जोटी से गाधौले जोटार साइज बहुत बिग थिला, and there were two bridges across. आ मध्य दे दुईटी ब्रिज जाइथिला बा पोलो जोटा आमे कहूँ, एंड इट वाज टू मच अट्राक्टिव टू वॉच एंड टू बाथ. बहुत आकर्षणीय थिला से जगह. थाइदर वी यूज टू रिपेयर फॉर आवर्स. इट इज अ वर्ड वी शुड राइट द मीनिंग ऑफ रिपेयर फॉर आवर्स. आर अर्थ होची बहुत संख्यार लोक मैंने सेठाकू जाउथिले एंड बास्क बिटवीन आवर डिप्स. गाधे सारला परे खरा पहुँचले. द मीनिंग ऑफ बास्क होची खरा पइबा. Between our dips eating enormous, you can write the meaning of enormous. प्रकांड वा भीषण बोलिकर कहूँ बा बड़ साइज रो बोलिकर कहूँ. They used to eat buns. Buns कहले केक on the hot asphalt margin. जो पिचू रोड होइतिला से पिचू पाखरे बसिकरी साइड रे से माने बसिकरी खाउथले आफ्टर bathing. It was kind of enjoyment they used to do those days. So there was a joke actually we would like to discuss. There is गोटे केमती गोटे मस्त गोटे भल घटना गोटे घटी गोटे हस मजालिया घटना. Naturally it was a joke to come up behind some naked friends. से माने किछि naked friends थिले. से माने कोन करथले तांको सहित कॉमेडी करथले. Actually the writer was fun loving guy, and से कोन हेतिला of behind some naked friend or even enemy and push him in. Actually they used to play together. गोटे प्रकार गेम खेलुथले
पिला माने छुआ मानक से कौन करते नेकेड कर दूसरे एंड इवन दे यूज टू पुश देम इनटू द वाटर तांको पानी भितर से माने कौन करते ठेली दूसरे इट वाज काइंड ऑफ गेम एंड दे यूज टू प्ले बिटवीन देयर क्लासमेट्स तांको दे यूज टू प्ले अमंग देयर क्लासमेट्स तांकर क्लासमेट मानकर सहित से खेलुथिले सबु सांग साथी हेकरी आई मेड क्वाइट अ हैबिट ऑफ दिस विथ बॉयज ऑफ माय ओन साइज और लेस मोर साइज रो माने मो भली दिसुथिबा मोर हाइट रो पिला मानकर सहित मु खेलुथिली दैट नेकेड गेम जोटा आम कहूँ जे माने नेकेड करिक पिला मानकु ठेलिबा जोटा आम कहूँ पानी भितर को ठेली दौले एंड एवरीबडी यूज टू वॉच इट एंड दे यूज टू लव ऑन इट से समस्ते हसुले खेल देखिए एंड इट वाज क्वाइट एंजॉयबल वन डे व्हेन आई हैड बिन नो मोर देन ए मंथ इन द स्कूल इट इज ओनली 1 मंथ गोटे माने मास होइची ही वाज क्वाइट न्यू आम कहवा टी संपूर्ण नुआ थिले ही वाज न्यू ही वाज ए न्यू कमर सो द राइटर हैज सेड हिज एक्सपीरियंस व्हाट काइंड ऑफ दैट फन इंसिडेंट वाज ऑकवर्ड तांको सहित केमती गोटे घटना घटिला गोटे हसलिया मजालिया घटना दैट इज मेंशन्ड हियर आई सॉ ए बॉय स्टैंडिंग इन अ मेडिटेटिव पोस्चर थॉटफुल बाय इमोशन आम कहीपर गोटे भावुक चिंताधारा गोटे लोक छिड़ाई गोटे पिला सॉरी तो गोटे स्टूडेंट छिड़ाई मेडिटेटिव पोस्चर कहले थॉटफुल पोस्चर रे माने भावुक मुद्रा छिड़ाई रॉब्ड इन ए टावल गोटे टावल पिंधि इन द वेरी ब्रिंक माने आम गोटे साइड रे पानी रो पाखरे से छिड़ाई एंड ही वाज लुकिंग लाइक एट द सेम एज ऑफ द राइटर को भली समान सेम एज रो बोलिक देखा जाउची किए ए बॉय हु वाज स्टैंडिंग इन अ मेडिटेटिव पोस्चर क्रॉप माने पिंधि थिबा ब्रिंक होची साइड रे प्रांत रे ही वाज नो बिगर देन आई वाज ही वाज नॉट दैट मच बिगर देन द राइटर अपेक्षा माने एते से बहुत बड़ देखा जाउनथला एंड ही वाज माने लुकिंग लाइक एट द सेम एज ऑफ द राइटर समान एज रे थिला बळी दिसुतला आई थॉट हिम फेयर गेम सो समथिंग इट केम इनटू द माइंड ऑफ द राइटर माइंड रे गोटे अद्भुत चिंताधारा आसिला दैट इट वुड बी अ फेयर गेम इफ आई pushed him into the water ताको जदि मु ठेली दिए पानी भीतर को so coming stealthily behind stealthily you can write the meaning of stealthily बोले लुचि छपी आसीबा coming stealthily behind I pushed him in तापर से कोन कोले आसिकी लुचि के आसिकी he pushed that boy who was standing in a meditative posture जे छिड़ा हितला से शांत मुद्रा रे से ताको जाई ठेली देले holding onto his towel out of ह्यूमनिटी सो दैट इट शुड नॉट गेट वेट से कौन कले तार टावल टी को धरिक ताको पेली देले बाय विच इट वुड नॉट गेट वेट जमतिया ओदा न हो बोलिक से चिंता करिक ए जिनसटी कले आई वाज स्ट्राटल्ड माने हतचकित हो जिबा आश्चर्य हो जिबा आई वाज स्ट्राटल्ड टू सी अ फ्यूरियस फेस इमर्ज फ्रॉम द फोम तापरे व्हाट ही नोटिस्ड एट फर्स्ट ही पुश्ड दैट पर्सन इनटू द वाटर से स्विमिंग पूल उपरको ताको ठेली देले बट फ्यू मोमेंट्स लेटर किछि समय पर कौन घटी ही नोटिस्ड अ फेस एमर्ज फ्रॉम द फोम गोटे ज्वलंत शिखा भली गोटे फेस देखागला एंड बीइंग एविडेंटली ऑफ एनरमेस स्ट्रेंथ मेकिंग इट्स वे बाय फायर्स द मीनिंग ऑफ फायर्स बोल कहले हिंस्रो स्ट्रोक्स टू द शोर तांको मुहरे से लोकटी हु वाज बीइंग पुश्ड बाय द राइटर विंस्टन एस चर्चिल द्वारा जी से पानी भीतर को ठेली हो जाइथिला देयर वाज ए फ्यूरियस फेस तार माइंड इट लुक्स लाइक इट वाज वेरी फ्यूरियस बहुत खतरनाक दिसुला तार फेस टी एंड ही गॉट एंग्री से बहुत रागी जाइथिला से लोकटी बा सॉरी से पिलाटी जा को ठेली थिले मिस्टर विंस्टन एस चर्चिल एंड he didn't know much about that person से पिला विषय बा से स्टूडेंट विषय से बहुत किसी जान नांती एंड ही थॉट ही वाज लाइक एट हिज स्टेज से तार स्टेज रे बा ही माइट बी हिज क्लासमेट ही थॉट से भाविले से बोधे तार क्लासमेट ही से से ताको ठेली देले जहाँद्वारा से कौन गला गोटे ज्वलंत शिखा भली तार फेस देखागला आई फ्लेड द मीनिंग ऑफ फ्लेड होची द पास्ट टेंस ऑफ फ्ली होची फ्लेड FLEE रो पास्ट टेंस होची फ्लेड जार दौड़ी पड़ापी चेष्टा कले ही ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस बट इन वेन बट ही डिडेंट डू सो करि पारले ना ही कुडंट डू सो से चेष्टा कले सेठू पळै जावाई बट इन वेन असफल हेले इन वेन बोले असफल स्विफ्ट एज द विंड द्रुत गति रे स्विफ्ट बोले द्रुत स्विफ्ट एज द विंड माई परसुएर
पोस्चर कहले मते जी फॉलो करथले मते जी धरिया ପାଇଁ चेष्टा करथले कि दैट पर्सन हु वाज बीइंग पुश्ड इनटू द वाटर जाको पानी भितर ठेली ठेली होइतिला जी से कौन कला राइटर को गोड़ेवा को लगिला द्रुत गति रे विंड भली पवन भली पोस्चर ओवरटुक मी से मते धरिदेला बा मते क्रॉस करिकर मते धरिला ओवरटेक माने मते धरिला क्रॉस करिक मते धरिला सीज्ड मी इन अ फ्यूरियस ग्रिप भीषण बा हिंस्र भाव में मते धरिदेला सेठी ही स्क्वीज्ड माय हैंड्स मते भल भाव में बांधीदेला बापा मते धरिदेला एंड हर्ल्ड मी HURLED द पास्ट टेंस ऑफ हर्ल वी कैन राइट फोपाड़ी देला लाइक ही थ्रू हिम क्या राइटर को से जोर रे फोपाड़ी देला भली कला एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल रो पूरा मध्यवर्ती भाग जोटा गभीर जगह से भितर से पेली देला इट वाज द स्टोरी एक्चुअली राइटर कौन होते he didn't know much about that student. He thought he might be at my age, and what he did, he hold his towel and he pushed him into the water. से तार टॉवल टी धरिकी ताकू नेकेड कौन कले ठेली देले ताकू पानी भितर को बट ता पूर्व से जान नथिले वेदर ही वाज एट हिज स्टैंडर्ड और नॉट से तांकर स्कूल रे तांको श्रेणी रे पढुतला कि नै से विषय रे जानि नथिले बट unknowingly he committed a mistake. So I am going to discuss in the next paragraph what kind of person he was or what kind of student he was, whether he was his senior or his classmate. We are going to discuss तार classmate थिले ना senior थिले से विषय आम जानिबा. सो द मीनिंग ऑफ हरल होची फोपाड़ देल ताकू रागरे ताकू धक्का मारले इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल से जाई पड़ला कोठी आम राइटर पढ़ले जाई कोठी समुद्र पानी रो बा स्विमिंग पूल रो मध्यवर्ती भाग जोडा गोटे डीपर पार्ट थिला डीपेस्ट पार्ट थिला. I soon scrambled. You can write the meaning of scramble. The meaning of scramble, जोटी scramble out. The meaning quick, to come out as quickly as possible. I soon scrambled out on the other side. मु अन्य साइड रे जाई पहुंचली and he tried to come little quicker. जल्दी टिके आसबा पे चेष्टा कले and found myself surrounded by an agitated crowd of younger boys. And in the next part जोटा आम कौच जो on the other side he reached there quickly अति शीघ्र से पहुँच गले and he tried to reach there quickly but what he found there से कौन पाइले and he was found the writer was found himself surrounded by an agitated crowd of younger boys. किछि younger boys सेठी जगिचंती तांको आंदोलित भाव रे माने से माने गोटे विप्लवी भाव रे से माने छिड़ाइचंती टू काउंटर द राइटर विंस्टन एस चर्चिल तांको सहित कथा तांको गाली करने से ये करने से छिड़ाई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यंगर बॉयज यू आर इन फॉर इट तुम्हें पानी भितर को से तुमको ठेलाला दे सेड से माने किछि कहबा दे ट्राई टू स्पीक समथिंग टू द राइटर विंस्टन एस चर्चिल जी से भूल काम करथिले. डू यू नो व्हाट यू हैव डन तुम्हें कौन जानिछ तुम्हें कौन काम करछ. इट्स एमरी ही इज इन द 6th फॉर्म. तुम जाको ठेलीच ही इज नॉट दैट सिंपल एज यू थिंक. तुम जाको सेमि से साधारण बालक नो इज नॉट दैट सिंपलर गाय यू थिंक एज यू थिंक. तुम जो भावुच से भाया से छोट व्यक्ति नुह बा छोट स्टूडेंट्स नुह यू डोंट नो मच अबाउट इट एंड यू डोंट इवन नो व्हाट यू हैव डन. तुम जानी ना से कौन तुम करिछ. इट्स एमरी द नेम ऑफ दैट पर्सन होची बा स्टूडेंट होची ता ना होची एमरी. ही इज इन द 6th फॉर्म एंड द राइटर वाज इन 4th फॉर्म बा 4th स्टैंडर्ड आम कौच से 4th स्टैंडर्ड रो गोटे स्टूडेंट. ऑन द अदर हैंड टू हुम ही पुश्ड जाको से ठेलिले ही वाज इन द 6th फॉर्म बा 6th स्टैंडर्ड 2 वर्ष सीनियर थिले. दे कंटिन्यूड टू रिकाउंट हिज मेनी टाइटल्स. दे स्पोक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द पर्सन नेम्ड और द स्टूडेंट नेम्ड एमरी. से माने एमरी रो विषय से माने कहबा को लागले से लोक माने तार टाइटल्स माने से कौन 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 चैंपियन अच्छी कौन कौन अच्छी से विषय. ही इज हेड ऑफ हिज हाउस माने जो आम मॉनिटर कौचु ही इज द हेड ऑफ हिज हाउस से होची तार क्लास रो हेड. ही इज चैंपियन एट जिम. ही इज चैंपियन एट जिम से होची जिम रो जने चैंपियन. ही हैज गॉट हिज फुटबॉल कलर्स एंड ही हैज आल्सो very skillful or he is very skillful in football game also and he has a football collar माने टिके शक्तिशाली लोक. and they also spoke about his titles and his achievements. समस्ते कहबा को लागिले जे से गोटे साधारण बालिक नुहे से होची गोटे चैंपियन and he is quite different from others. ए विषय से माने कहले
एंड ही ऑल्सो दे ऑल्सो टोल्ड टू द राइटर राइटर कहले यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन तुम कौन कर बोधे तुम जानी ना ऑन द अदर हैंड आई वुड लाइक टू मेंशन राइटर जानी ना जे टू हुम ही पोस्ट एक्चुअली व्हाट ही थॉट से भाविले कौन ये बोधवे मोर क्लासमेट होइतो बिकॉज द एज द हाइट वाज लुकिंग क्वाइट सिमिलर बा सेम हाइट रे से भाविले ये बोधे मो क्लास से से ठेली देले बट व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट और व्हाट वाज गोइंग टू हैपन ही डिडंट नो अबाउट इट पर परिस्थिति कौन होगा जाउतला से जानि नथले दे कंटिन्यू टू रिकाउंट हिज मेनी टाइटल्स टू फेम एंड रेवरेंस यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ रेवरेंस रेवरेंस कहले रेस्पेक्ट ऑनर बा सम्मान ताकू सम्मान दउथले डायलेक्ट ओपन अनदर मीनिंग गोटे जनक विषय रे बारंबार कहवा बहुत थर कहवा एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द पर्सन एंड इट वाज कंटिन्यूड फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड फ्यू मिनिट्स एटा ता विषय कहवाटा पूरा जारी रहिला बहुत समय पर्यंत रेफरेंस कले ताकू द पीपल यूज टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन से माने कौन करते ताकू रेस्पेक्ट दउथले एंड दे ऑल्सो स्पोक अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड इट वाज कंटिन्यूड फॉर फ्यू मिनिट्स बहुत समय धरी एटा चलिला ए कथावार्ता एंड रेट्रिब्यूशन यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ रेट्रिब्यूशन awful retribution माने fearful punishment the writer was in fear they might or they could punish him तांको काले पनिश करिवे से विषय से डरुथले the writer was in fear से भयभीत हो जाइथिले often the awful retribution that would fall upon me and the writer it felt कले बोध हुए they are here and they were here to punish me and they might punish me से माने मते पनिश करी पारंती से से ही वाज इन फियर डर बा भयभीत हो जाइथिले तापर अछि आई वाज कन्वल्स्ड यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ कन्वल्स थ्रू पास्ट टेंस होछि कन्वल्स्ड सेकिंग वायलेंटली भय रे थरिबा को लागिले वायलेंट कन्वल्स्ड वाज नॉट ओनली विथ टेरर केवल भय रे मो थरिबा को लागिले ता नु बट विथ द गल्ट ऑफ स्कैरीलेस यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ गल्ट ऑफ स्कैरीलेस दैट मीन्स फीलिंग अनहैप्पी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और सिंफुल गोटे किसी पाप काम करवा किसी गोटे रॉन्ग काम कला भली से निजको फील करथले गोटे दोषी भाव द मीनिंग ऑफ गल्ट ऑफ स्कैरीलेस एंड आई टोल्ड यू ही वाज इन फियर दैट ही हैड कमिटेड अ ह्यूज मिस्टेक अननोइंगली अजनतर गोटे ग्रेट बड़ मिस्टेक कर देइचंती एंड इट वाज नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन एटा एक्सपेक्ट करा जाउ नथला स्टिल इट वाज हैपेंड एंड इट वाज नॉट कंप्लीटली हिज मिस्टेक एक्चुअली अननोइंगली ही हैड डन इट एटा से बहुत डर माने ये आम कही परिबा अजनतर कर देइचंती सो बट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग एंड ही वाज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ से डिफेंड करि पारनांती निजको हाउ कुड आई टेल हिज रैंक व्हेन ही वाज इन बाथ टॉवल एंड सो स्मॉल बट ही वांटेड टू स्पीक समथिंग बट ही वाज नॉट गोइंग टू रिवील एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन से जो टावल पिंधला से विषय रे केवल देखा जाउतला से सब विषय भी कहबा चाहूतले बट दैट वाज नॉट द परफेक्ट टाइम टू स्पीक ओवर इट आ ऊपर कहबार सेटा प्रकृत समय नथिला सो ही डिडंट नो अबाउट एनीथिंग एंड ही डिडंट स्पीक एनीथिंग अबाउट द रैंक ऑफ दैट पर्सन से भली से जो कहले से गोटे चैंपियन एमती सेमती कथा कहूतले ही फॉरगेट अबाउट दैट से कथा भूली की गोटे कथा चिंता करतले व्हाट वाज देयर इन हिज माइंड जहाँ तांको माइंड रे थिला जेतेबेले से ठेलिले देर वाज नो रैंक ही सॉ एंड ही नोटिस्ड कौन प्रकार रैंक से देखी ना बोलिक से फिल कर आई डिटरमाइंड टू एपोलोजाइज इमिडिएटली तापर क्षमा प्रार्थना द मीनिंग ऑफ एपोलोजाइज देन ही डिसाइडेड टू एपोलोजाइज इमिडिएटली तुरंत ताकू जाई क्षमा मागे देवा से डिसाइड करले आई अप्रोच्ड द पोटेंटेट द मीनिंग ऑफ पोटेंटेट यू कैन राइट ए पर्सन हु पोजेसेस अ ग्रेट पावर जहाँ पाखे जे गोटे बहुत शक्तिर अधिकारी पोटेंट इन लिवली ट्रेपिडेशन यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ ट्रेपिडेशन ए स्टेट ऑफ अलार्म और ड्रेड गोटे साइन ऑफ ड्रेड बा फियर गोटे भयर गोटे लक्षण जोड़ा आम कहूँ सो आई अप्रोच दैट पोटेंटेट से जाना पाइले दैट ही केम टू नो अबाउट द पावर ऑफ दैट पर्सन नेम्ड एमरी विषय से जाना पाइले ही वाज नॉट दैट ऑर्डिनरी स्टूडेंट से साधारण स्टूडेंट नथला ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट ही वाज चैंपियन he was the head of the house and he was in the 6th standard or 6th form and he decided to apologize immediately or as quick as possible जत शीघ्र संभव से शीघ्र जाई क्षमा प्रार्थना करबा भलो थिबा बोली से चिंता कले and then he went to Amri and said I am very sorry मोर भूल ले जेछि बोली से कहले मते क्षमा I said I mistook you for a fourth from boy I mistook you
फॉर ए फोर्थ फॉर्म बॉय मु भाविली तुमको कौन यू माइट बी और यू मस्ट बी फ्रॉम फोर्थ स्टैंडर्ड और फोर्थ फ्रॉम बॉय फोर्थ फॉर्म बॉय जोटा मोर भूल थिला बोली कहले जे तुम चतुर्थ स्टैंडर्ड थी बोलिक मुझे भाविली बट इट वाज कम्प्लीटली माय मिस्टेक यू आर सो स्मॉल से भी एक कथा कहले यू आर सो स्मॉल आप देखा छोट he didn't seem at all placated by this placated the meaning to make somebody feel less angry tar rogo it didn't help to decrease the anger of that person so when he went to Amri and said I am very sorry it didn't work actually ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ and he was not satisfied with the sorry told by the writer जो सॉरी बोली कहले जे मु जो भूल कर इट वाज कम्प्लीटली माय मिस्टेक से सेतरे शांत हेले नहीं द मीनिंग ऑफ प्लाकेट अर्थ होची राग शांत होबा द पास्ट टेंस ऑफ प्लाकेट होची प्लाकेटेड राग शांत हेला नहीं दैट मीन्स इन दिस सेंस वी कैन से द पर्सन आमरी वाज नॉट सैटिस्फाइड विथ द सॉरी टोल्ड बाय द राइटर विंस्टन एस चर्चिल द्वारा कह जाइथिबा सॉरी रे से सैटिस्फाई हेले नहीं and one more thing brilliantly it was added by the writer to satisfy him तांकु राग शांत करने तांकु संतुष्ट करने आउ गोटे कथा कहले यू नो अबाउट माय फादर हु इज अ ग्रेट मैन मो बापा होउछन्ती बहुत महान लोक तुम जानिथियो से विषय इट्स ऑल्सो स्मॉल दैट ही स्पोक एंड दैट डिडंट वर्क ऑल्सो सेटा भी काम कला ना एंड द पर्सन आमरी वाज नॉट सैटिस्फाइड विथ द वर्ड्स स्पोकन बाय द राइटर जो कथा कहले बोधे क्षमा करदेवे एथर जदि मो बापा नाटा कहबी that also didn't work एटा भी तांको साहाଯ୍य करला नहीं एट दिस पॉइंट द पर्सन किए आमरी लव्ड ऑन हिम लफ्ड माने हसवा को लगिला जेतबे से बापा कथा कहले एंड आफ्टर सम जनरल रिमार्क्स अबाउट माय चिक यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ चिक चिक अर्थ होची इम्पोलाइटनेस बा जो अभद्रामी कथा कहूँ आम बा जोटा डिसरेस्पेक्टफुल आम कहि परिबा about my chick and how I had better be careful and next what he did impolitely he said to the writer के आमरी कोची राइटर को जे I had better be careful in the future माने it is very important that you should be very careful in the future भविष्य रे जत्नर सहित रो बोली से तांको वार्निंग देले it was kind of warning to the writer by आमरी ताको वार्निंग देले signified that the incident was closed and in this way the matter was compromised and the incident was closed एभली भाव रे तांकर भीतर जो थिबा जो झगड़ा होता आम कहीपर जो तांकर भीतर जो घटनाटी घटला सेठी क्लोज होता सो वी केम टू नो अबाउट अ ह्यूज लेसन हियर बाय द राइटर unknowingly he committed a mistake and when he tried to seek forgiveness from Amri जाकु से ठेली थिले पानी ताटारू क्षमा प्रार्थना करथिले but the person however was not satisfied with the words spoken by the writer को द्वारा कह जाइथिबा कोनोस प्रकार कथार से satisfy हेले नाही but he warned later Amri तांको warning देला better be careful in the future भविष्य रे जत्नर सहित रुह and also he signified that the incident was closed in this way the incident was closed and it was compromised between the writer Winston S. Churchill and Amri who was a champion at gym जाको से ठेली देथिले पानी